countable and uncountable noun. These are the other types of noun, but I will tell you about countable and uncountable noun later. First, I will tell you proper noun, common noun, abstract noun, and collective noun. When you talk about proper noun, you can say that if there is name of somebody else, that can be included in common proper noun. Suppose name of any city, Delhi, name of any person, Suresh, and anything which you can say any name, that is called proper noun. When you talk about common noun includes the word which you use commonly. For example, girl, boys, books. So these are common noun. There is no name of book, there is no name of girl, there is no name of boy. But commonly, the boy word can be used for any boy, or the girl word can be used for any girl. But in case of proper noun, you can use any particular name to one person, you can't give to another person. So that is specific. Proper noun is specific, but common noun is not specific. When you talk about abstract noun, use such words which you can realize. For example, wind. For example, smell, fragrance, emotions, hatred, love, sympathy. Such words can be included in abstract noun. When you talk about collective noun, you talk about connection. A bunch of flower, troop, army. Such things are collective noun. When you define noun, you can say a person, place, or thing is noun. When you talk about common noun, these names are common to everyone. By this way, these four categories have been divided: proper, common, abstract, and collective. I hope you understood the difference proper, common, abstract, and collective. Now you have countable and uncountable noun. These are two different type of categories. They can be correlated with these four, but they have some different way to understanding. Countable which you can count, and uncountable which you cannot count. But countable and uncountable related to collective noun. जैसे if you say 4 bananas, 3 mangoes, these ये चीज़ अभी का कुछ नहीं है. 4 bananas, 3 mangoes. तो इसमें पता चल रहा है कि काउंट किया गया है, नंबर पता चल रहा है, ये काउंटेबल में आ जाएगा. बट अनकाउंटेबल यू कैन से दैट देयर आर लॉट ऑफ इन नंबर्स, मोर देन वन. इफ देयर इज more than one, you can count it, but you don't know exactly how much, how many. For example, 5 liter milk, you cannot count milk. 1 2 3 4 5 6, you can't say with it. Or if you use some people, the exact number is not clear, so that is uncountable. Some people, each of them, every, all, how many people are included in all, you can't say, that is uncountable. By this you can understand countable and uncountable noun. Remaining things are related to exercises. I can give you some example also. You have done your exercise work also. If you have any doubt, you can call me or you can ask me through message. So I have just explained you proper noun, common noun, abstract noun, and collective noun with examples. So there is indication of a part of, you can say, apostrophe also. So if you want to understand regarding apostrophe, I can tell you example. जैसे the book of Rakesh,
राकेश में apostrophe s लगाया, राकेश बुक। ये तो सिंगुलर की बात हो गई। द बुक ऑफ बॉयज़ अगर लिखा हुआ है तो बॉयज़ में BOYS आप लिखेंगे बॉयज़, उसके बाद आप apostrophe लगाएंगे तो बाद वाले apostrophe के बाद s लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंगुलर वर्ड में apostrophe लगा रहे तो apostrophe लगाकर s लगाना पड़ता है पोजेशन शो करने के लिए। लेकिन अगर आप प्लूरल में apostrophe लगा रहे हैं तो सिर्फ apostrophe लगता है, बाद में s लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी प्लूरल में काउंट हो जाता है और आगे आप उस चीज़ का नाम या शब्द लिख सकते हैं जिसके लिए कहा जा रहा है। तो ये डिफरेंस होता है सिंगुलर की apostrophe में और प्लूरल की apostrophe में। और किसी का अगर नाम है तो वो तो सिंगुलर में ही काउंट हो रहा है, तो वो तो उसमें s लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल्स में आपने करे भी हैं कुछ सेंटेंसेस, आई वाज टच्ड बाय द जनरॉसिटी ऑफ स्ट्रेंजर, तो आपने इसमें लिख दिया था स्ट्रेंजर्स जनरॉसिटी, बाकी सेंटेंस वही लिखा था। तो स्ट्रेंजर सिंगुलर था, इसमें आपने apostrophe लगा करके s प्लूरल कर दिया था। अब दूसरे सेंटेंस में ट्रीज प्लूरल था, द गार्डन एंड रिसोर्ट्स फुल ऑफ मैंगो ट्रीज, तो इसमें द रिसोर्ट्स गार्डन कर दिया था, तो गार्डन रिसोर्ट था ना, रिसोर्ट्स गार्डन हो गया था। ट्रीज सिंगुलर है प्लूरल है, इसमें फर्क नहीं पड़ता। द पोर्टर डिड नोटिस द अप्रोच ऑफ द ट्रेन, तो अप्रोच ऑफ द ट्रेन है, ट्रेन से अप्रोच हो गया। By this your part noun has completed. Your next chapter is pronoun. Pronoun, when you study about pronoun, when you can say about personal pronoun. Now I tell you about personal pronoun. Pronoun. When you talk about pronoun, you can say that pronouns are the words which can be used in place of noun. हिंदी में जिसको आप सर्वनाम कहते हैं, तो आप कहते हैं कि सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा की जगह पर या प्राउन या नाउन की जगह पर यूज़ किए जा सके। तो आप इसकी कैटेगरी को अगर डिवाइड करें तो सिंपली अगर आप कहेंगे प्रोनाउन के लिए तो आप इसको ही कहेंगे, शी कहेंगे, इट कहेंगे, दे कहेंगे, दीज कहेंगे, दोस कहेंगे, ये सब एग्जाम्पल्स होंगे प्रोनाउंस के। व्हेन यू कैटेगराइज देम इनटू टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो सबसे पहले बात आती है पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स। ए पर्सनल प्रोनाउन कैन बी रिप्लेस द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। पर्सनल प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो है वो सेंटेंस में रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, यू एंड आई मीट हर एट द रेस्टोरेंट। अब इसमें यू, आई, हर, ये सब पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें अगर रिप्लेस करना हो सेंटेंस में तो सेंटेंस में ये, अब दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वी कैन गो विद हिम टू द बुक फेयर, तो इसमें हिम है, वी है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसमें जो केसेस होते हैं उन केसेस के बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोनाउन किस केस में आएगा। जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ही, हिज, हिम, शी, हर, ये सिस्टम रहता है इनको यूज़ करने का। सेंटेंस में इसी बेसिस पर इनका प्रोनाउन का यूज़ होता है। ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं और इनको हम इनके सेंस के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे हिम जो शब्द है वो अगर आप एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट में ही जाएगा, अगर आप एज सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो तो नहीं यूज़ हो सकता। लेकिन हर जो शब्द है वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों केस में आता है, तो वो ऑब्जेक्ट के केस में भी आएगा लेकिन सब्जेक्ट केस में भी आएगा। जैसे हर कॉपी इज़ नॉट इन दिस रूम, और आई मेट हर, इसमें हर ऑब्जेक्ट है। और आप कहते हैं हर कॉपी इज़ नॉट इन दिस रूम, तो इसमें हर सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों ही केस में हर है तो एटलीस्ट प्रोनाउन ही, और बात यहाँ प्रोनाउन की है। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड
in place of the names of people or thing. A personal pronoun can replace the subject or object of the sentence. तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो चीज़ों के नाम की जगह पर यूज़ की जाते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन होते हैं तो उसमें भी नाम का इस्तेमाल होता है, और पर्सनल प्रोनाउन में भी जो है इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स की तरह इसका यूज़ होता है। ए पर्सनल प्रोनाउन कैन रिप्लेस द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बेसिस पर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे बॉक्स में आपको दिया गया है आपकी बुक में कि फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, अस, ये फर्स्ट पर्सन की तरह यूज़ होते हैं। तो बात अगर फर्स्ट पर्सन की करते हैं तो सीधी सी बात है, हम इसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आई सेंटेंस में सबसे पहले आ सकता है, वी पहले आ सकता है, लेकिन मी नहीं आ सकता है और अस नहीं आ सकता है तो फर्स्ट पर्सन, लेकिन ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट में जाएंगे, और सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है आई और वी ये सब्जेक्ट केस में आ जाएंगे, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन के चारों प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन में यू आता है और यू आता है, सिंगुलर हो, एक व्यक्ति हो तब भी आप यू कह सकते हो, पूरी भीड़ इकट्ठा हो तब भी आप उसको यू कह सकते हो। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों केसेस में यू आता है। ऑब्जेक्ट में अगर आ रहा है तब भी यू लिखा जाएगा, और प्लूरल का ऑब्जेक्ट है तब भी यू लिखा जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट केस में आता है। जैसे आपने कई भाषण देते हुए किसी हुजूम से, किसी भीड़ से आपने कहा आई गिव यू टाइम ऑफ 15 days टू कंप्लीट दिस वर्क। भीड़ में 50 लोग, 100 लोग मौजूद हैं। जैसे ही आपने कहा आई गिव यू, यहाँ पर यू आपने ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया, तो ऑब्जेक्ट आपने भीड़ के लिए कहा, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है यू, तो इसमें ऑब्जेक्ट में है, लेकिन यू हमेशा यू रहता है, चाहे वो सिंगुलर का हो या प्लूरल का हो, सब्जेक्ट का हो या ऑब्जेक्ट का हो। तो उसमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट का यू है और प्लूरल में यूज़ हुआ है। आपने किसी एक पर्सन से ये बात कही होती तो वो ऑब्जेक्ट का होता, लेकिन सिंगुलर का होता। लेकिन अगर सेंटेंस में कहते हैं यू आर ऑल रिस्पॉन्सिबल या यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो अगर बात यू की कर रहे हैं तो सिंगुलर के लिए कह रहे हैं, तो एक पर्सन के लिए तो यू सिंगुलर का हो गया, पूरी भीड़ से कह रहे हैं तो प्लूरल का हो गया। लेकिन इसमें यू सबसे पहले आ रहा है सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन का पार्ट है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट ये सिंगुलर में आता है, दे प्लूरल में आता है, सिंगुलर में हिम, हर, इट आता है, क्योंकि सेंटेंस के आखिरी में ही इनको लिखा जाता है, तो ये सिंगुलर के ऑब्जेक्ट हो गए। और देन प्लूरल का वर्ड है, वो भी सेंटेंस के आखिरी में लिखा जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और एंडिंग ऑफ द सेंटेंस। एंडिंग का है तो ऑब्जेक्ट का है, बिगिनिंग का है तो सब्जेक्ट का है, सिंगुलर का है या प्लूरल का है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। नाउ यू हैव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब ही होता है डिमॉन्स्ट्रेशन करना, संकेत करना, इशारा करना, इंडिकेशन करना। तो दिस इज माई कार, इंडिकेट करके कहते हैं दिस इज माई कार, दैट इज हिज हाउस, दीज आर हिज बुक्स, दोज आर द सर्टिफिकेट्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स। ये और वो दो शब्द इस्तेमाल होते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं तो दिस या दीज का यूज़ होगा, दिस सिंगुलर का है, दीज प्लूरल का है। और वो का यूज़ कर रहे हैं तो डैट और दोस का यूज़ होगा, डैट सिंगुलर का है और दोस प्लूरल का है। ये दोनों का डिफरेंस रहता है, और दोनों ही जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव टाइप के प्रोनाउन है, जो सिर्फ संकेत करने के लिए यूज़ होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से सिंगुलर है या प्लूरल है। बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की। पॉजेसिव में योर्स, हिज, हर्स, आर्स, योर, दियर्स इनका यूज़ होता है। पॉजेसिव में पॉजेशन से होता है। पॉजेशन का मतलब होता है अधिकार या होना। जैसे दिस बुक इज़ योर्स, आपकी किताब है,
तो योर्स यहाँ पर आपकी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पोजेशन शो कर रहा है, अधिकार शो कर रहा है। जैसे द बैग विद द ऑरेंज टैसल्स इज हर्स, तो हर्स यहाँ पर पोजेशन को शो कर रहा है। द बुक कवर्ड विद शीट इज माइन, तो वो किताब जो शीट से ढकी हुई है मेरी है, तो मेरी या माइन यहाँ पर पोजेशन शो कर रहा है, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सीधी सी बात है, वही शब्द है जो इसको आप इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हो सरल शब्दों में। सेंटेंस के शुरुआत में सबसे पहले वो वर्ड दिए होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, उसमें भी आपको विच, वाट, व्हेन, हुज, हुम लिखा हुआ मिल जाता है। हर सेंटेंस क्वेश्चन जाकर आपको लिखा मिलता है। ये सारे के सारे प्रोनाउन ही तो हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ योर हाउस, हु इज़ योर फादर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर, हुज पेंसिल इज दिस, व्हेन विल यू कम टू मुंबई, वेयर इज़ योर फादर। तो ये सब सेंटेंस के शुरू में जितने भी इंट्रोगेटिव शब्द आ रहे हैं ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव में आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रत्येक, हर एक, सभी, वेरी फ्यू, नन, मच, मोर, ये सब जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। जैसे कि ईच ऑफ देम इज स्पोर्ट्स पर्सन, आइदर ही, आइदर ऑफ यू और ही, इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। नाइदर यू नॉर ही, एवरीवन। तो ये जो शब्द हैं ये संख्या तो नहीं बताते, लेकिन ये यूँ बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन शोरा मतलब एक से अधिक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं। जरूरी नहीं सबसे आखिरी में वो आ ही रहे हों, हो सकता है कोई एडजेक्ट का पार्ट बचा रह गया तो वो उनके बाद में आ जाए, लेकिन बेसिकली ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं। बस थोड़ा सा फर्क होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। दे आर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हरसेल्फ, वनसेल्फ, इटसेल्फ। ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव होते हैं। जैसे द बॉय पेंटेड द विंडो हिमसेल्फ, जब सब्जेक्ट अपना काम खुद करता है तो जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। लेकिन बस फर्क इतना होता है कि ये इम्फेटिक की तरह होता है, लेकिन इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में फ़र्क इतना होता है कि रिफ्लेक्सिव में ये शब्द आखिरी में चले जाते हैं, मतलब वर्ब के बाद चले जाते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो अगर जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जा रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जा रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं, और अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखे जा रहे हैं तब इम्फेटिक हो जाते हैं, उसके बाद में फिर वर्ब आती है। इतना ही फर्क होता है रिफ्लेक्सिव का और इम्फेटिक का। जैसे एक सेंटेंस मान लीजिए दिया हुआ है, he prepared tea for himself। अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, प्रिपेयर्ड वर्ब आ गया है, टी ऑब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद में हिमसेल्फ आया है तो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर ये हिमसेल्फ ही के बाद में तुरंत बाद आ जाए, इसको आप लिख दो ही हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड टी, तो ही के तुरंत बाद आ जाएगा तो इम्फेटिक हो जाएगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद में आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव है, सब्जेक्ट के बाद जाएगा इम्फेटिक है, बाद में आपकी वर्ब लिखी गई है। मतलब सेंटेंस का हिंदी में वही निकलेगा, उसने चाय खुद बनाई,
लेकिन इनके यूज़ के बेसिस पर ये फर्क पड़ जाएगा कि प्रोनाउन रिफ्लेक्टिव है या इम्फेटिक है। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है तो इम्फेटिक है, और ऑब्जेक्ट के बाद में या ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। शब्द वही यूज होते हैं, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ। सिंगुलर में ये, और नहीं तो प्लूरल है तो सेल्फ हो जाता है, SELVES करके। तो ये फर्क होता है रिफ्लेक्टिव का और इम्फेटिक का। बात है रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू ए नाउन मेंशन बिफोर इट। दे आर हु, हुज, whom, which, that। ये सब रिलेटिव होते हैं, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द क्योर डिजीज वाज अबाल्टेड। दिस इज द फ्रेंड हुज फादर पास्ड अवे। दिस इज द बॉय हु वाज बीटन। द डॉग विच हैज हर्ट इट्स लेग वाज टेकन अवे। तो ये जोड़ने काम कर रहे हैं। कहने को तो शब्द ये वही आ रहे हैं, व्हेन, हुज, विच, whom, ये सब आ रहे हैं जिसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह आ रहे हैं, लेकिन काम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वो रिलेटिव है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर जोड़ने का काम ना कर रहे होते, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे होते, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। शब्द वही है, फंक्शन अलग अलग है यहाँ पर। आगे इसमें आपका एक्सरसाइज वर्क है, यू हैव डन इट नाउ ऑलरेडी। बाय दिस योर this video has been open, which is related to noun and pronoun. Thank you.